My name is Animesh Singh and I represent Assam Downtown University, Guwahati. It's in Panikheti, Narangi, and it's one of the oldest university in Northeast. And from the course side, we have got all the UG and PG courses. The strong course is the medical course and also the nursing courses over here. And recently, it's the first, you can say, university in Northeast which have got tie-up with TCS, IBM, and L&T. Three companies. These are the giants in the corporate industry. And from the facility side, we have got all the facilities, modern facilities. We are also in tie with different colleges and you can say schools in Arunachal Pradesh for MEO signing and all. Recently, this year only we did a teachers conclave where from different teachers and principals came into DN College. It was in the discussion was NEP 2020, where all the principals, teachers from different areas of Arunachal Pradesh, they came and have attended the seminar. So is there any facilities for the ST students? Yeah, we have got the scholarship facility for ST students, and especially the Arunachal Pradesh, the umbrella scheme. So we do give the scholarship in Assam Downtown University. And apart from that, every 3 students in Assam Downtown University, they are studying in a scholarship only. So that is the best thing. And also we provide, incubation center is there where the student have got their own ideas. So we fund the student ideas, and we also help them to get financial aid from different agencies in Guwahati. नमस्कार, हम लोग अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज रामसाई से आए हैं। मेरा नाम जिशान खान है और हमारे साथ सुमन मुखर्जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कैरियर फेयर में। और हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो नर्सिंग है, फार्मेसी है, आपका अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाए तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है, और मैनेजमेंट है, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें हम एडमिशन लेते हैं। और हम लोग बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे बच्चे मेंटली या उनका मतलब हर तरीके से वो प्रिपेयर्ड हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। उसमें जैसे हमारे पास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, आने वाले समय में और भी ऐसे स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स आने वाली हैं जिसमें बच्चों को हम चाहते हैं कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें और उनका एक तरीके से जो कहते हैं ना एजुकेशनल फील्ड है और पूरी तरीके से उनकी पर्सनालिटी इन्हांस करने के लिए हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं। हमारे यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आके आपको उनका पर्सनालिटी जैसे यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसमें उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन्हांस होती है। जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ के APST स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे जैसे स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाते हैं। हमारी जो पेरेंट बॉडी है वर्ल्ड एजुकेशन मिशन बहुत सारी उसमें स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाती है। जैसे आपका हमारे DCM सर की माँ के नाम से है, शिक्षा में के नाम से है, चाउना में हमारे जिग्नू नामचून के नाम से है, और हमारे जो चांसलर सर हैं उनके नाम से है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती हैं हमारे वहाँ पे ताकि APST स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कुछ कर पाए। My name is Rachita. I am presenting Dr. C.V. Raman University. University situated in Bilaspur, Chhattisgarh. That is central heart of India. We have NEC A accreditation and we offer 72 courses, 9 faculties and so many other certification courses. And we have lush green campus, so many advanced lab. Is there any facilities for the ST or SC student? जो ST जो SC स्टूडेंट होता है, खास करके जो APST लोग होता है, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है आपका यूनिवर्सिटी की ओर से? हम गवर्नमेंट की सारी स्कीम को एप्लीकेबल करते हैं। जो स्टूडेंट है वो स्कॉलरशिप, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हमारे यहाँ पर स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। हम अदर स्टेट के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट आता है, रजिस्ट्रेशन करता है, हम उसे एक बोनाफाइड देते हैं और उसके बाद वो जो भी स्टूडेंट है जिस स्टेट का, वो उस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकता है। Hello, good morning. My name is Miss Oma Mapang and I am working in Himalayan University as a HR and in Education Counselor Department. So हर का जो फैसिलिटीज़ होता है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उसको हम लोग यहाँ हमारा हिमालयन यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए हम लोग प्रोवाइड करता है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, स्मार्ट क्लासेस बोलो, एवरीथिंग, कैंपस,
प्लेग्राउंड सब है। में आप लोगों को वेरियस डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, नर्सिंग हो गया, फार्मेसी काउंसिल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, MSW हो गया, सोशल वर्क हो गया, लाइब्रेरी हो गया, और भी बहुत सारा, एग्रीकल्चर हो गया। तो ऐसे वेरियस डिपार्टमेंट हम लोग आप लोग के लिए लेके आया है, ताकि हम लोगों का जस्ट एक ही मोटो है, हिमालयन यूनिवर्सिटी का एक मोटो है कि कोई भी बच्चा बिना पढ़े नहीं जाना चाहिए, और एक भी बच्चा जो कि फाइनेंशियली वीक हो या जो भी हो, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर सके, क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सके। सर आज सुबनसुरी होटल में जो कि एक एक्सीलेंट डायरेक्शन की टीम उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है कि करियर काउंसलिंग एजुकेशन को लेकर, तो आप उस विषय में आप एज ए आपकी टीम से आप विजिट करने आए, तो आप कुछ कहना चाहिए? या डेफिनेटली ये जो एक्सीलेंट डायरेक्शन टीम है उसको थैंकफुल भी है कि हमारा दौर पे हमारा बच्चा, अरुणाचल बच्चा जो आउट स्टेट पे जाके जो एजुकेशन को एक्सप्लोर करना चाहता है, जो बेस्ट एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है बाहर पे उसको एक्सप्लोर करना चाहता है, तो उसको आज यहाँ पे लेकर आया है। एंड एट द सेम टाइम बीइंग ए स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस स्टूडेंट, सो मैं जितना भी यहाँ पे अभी थोड़ा पहले भी एड्रेस किया हुई है, जितना भी वेरियस स्टेक होल्डर्स जो आउटसाइड से आए हैं उन सभी को ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूँ, और अपना ओर से जो एक्सपीरियंस जो हमने जब ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज जो हम लोग भी फेस किया है, तो उसको लेकर यहाँ पे थोड़ा अपना शेयर किया है चीज़ को लेकर। जैसे कि यहाँ से जितना भी कंसल्टेंट बाहर से आता है, खासकर बहुत लोग झूठ मार के ले जाता है हमारा बच्चा को कि प्रोस्पेक्टस दिखाएगा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से, कोई 100% स्कॉलरशिप, 70% स्कॉलरशिप, लेकिन वंस दे गेट एडमिशन जब ले लेता है बाहर स्टेट पे, तो उस लोग का चेंज हो जाता है। ना ही प्रोस्पेक्टस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता है उस प्रकार से रहता है, ना ही जो स्कॉलरशिप 100% बोला था वो जाके वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, 50% 60% हो जाता है। तो और कई में ऐसा होता है कि बहुत सा कॉलेज बीच में आप लोग भी देखता हुआ कि जो UGC AICTE में एफिलिएटेड नहीं रहता है, उन वो सब का भी बहुत सा मसला रहता है। तो ये सब को लेकर यहाँ पे आज जितना भी कंसल्टेंट जो स्टेक होल्डर था उसको को अपना ओर से थोड़ा वार्न किया है, एंड चाहता है कि हमारा यहाँ से जो बच्चा को ले जाएगा उसको यहाँ पे एक भी % झूठ नहीं मार के ले जाने के लिए, ताकि जो यहाँ से जो इतना पेरेंट्स लोग, हम लोग का माँ पिताजी भाई भैया लोग इतना होप करके बाहर पे भेजते हैं, तो उस लोग के साथ में कुछ गलत डायरेक्शन का वजह से वो लोग कहीं कॉलेज में ना फंस जाए बोल के। और साथ ही साथ ये भी एक रिक्वेस्ट किया कि और करना चाहूँगा कि जैसा कि बहुत सा कंसल्टेंट जस्ट फॉर ए टाइमिंग के लिए आता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जितना भी जहाँ में हमारा मास में अरुणाचली स्टूडेंट बाहर पे पढ़ता है, उसका एक कंसल्टेंट यहाँ में परमानेंट एक ऑफिस रहने से ठीक है, ताकि वहाँ पे कुछ भी एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाओ या फिर कुछ भी प्रकार का कुछ इमरजेंसी केसेस रह जाए, तो एटलीस्ट यहाँ पे या फिर कोई कंसल्टेंट झूठ मार के ले जाता है, तो उसको एटलीस्ट यहाँ में हम लोग वो ऑफिस का थ्रू से वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट तक हम लोग पहुँच सकने के लिए। तो ये एक मेरा तरफ से अपील और एक रिक्वेस्ट रहेगा, जितना भी यहाँ पे कंसल्टेंट आया है उसको लेकर जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो इसका जो मोटो क्या है, जो आप एज ए ऑर्गेनाइजर जो आप लोग एक्सीलेंट डायरेक्शन की ओर से जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए। Yeah, hi. My name is Rupam Roy. I'm an associate partner of this organization. The main motto of this event is to spread awareness about different courses. Globally, जो हम लोग इंडिया में जितना भी यूनिवर्सिटीज़ और रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस है, तो बहुत सारा कोर्सेस है जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को वो पता नहीं है। सो दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो या फिर एडमिशन हेड्स हो, वो लोग आते हैं, अटेंड करते हैं, एंड दे स्पीक ऑल द इंफॉर्मेशन, क्वालिटी इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स एज वेल। डिफरेंट यूनिवर्सिटी है पार्टिसिपेटिंग टुडेज प्रोग्राम, सो आज टोटल कितना ऐसा यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस लोग हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो काउंसलिंग जो दे रहे हैं? सी वी ऑर्गेनाइज दिस इवेंट इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट, सो डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हम लोग ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट 13 ईयर्स से कर रहे हैं। सो लेकिन यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है इट्स नियर अबाउट 21, बट टेक्निकली ड्यू टू सम
geographical location and I mean communication issues, क्योंकि बहुत सारा जैसे साउथ इंडिया और नॉर्थन पार्ट से यहाँ पे आना थोड़ा ट्रबल हुआ है कुछ कुछ लोगों को, एंड स्पेशली ड्यू टू सम ऑफिशियल रूल्स जो अरुणाचल में है, उसके लिए हम लोग का लगभग 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर नहीं पाया। बट नॉर्मली हम लोग का जो अदर पार्ट ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट में जो होता है वो हम लोग को 40+ इंस्टीट्यूशंस आता है, बट यहाँ पे हम लोग अभी इस साल 22 ही आया है। सर मेरा और एक सवाल है, जैसे कि हम देखते हैं कि आप जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये जो यूनिवर्सिटी खास करके पूरे बाहर स्टेट से हैं, तो अरुणाचल से बाहर से पूरा अलग अलग डिफरेंट स्टेट से हैं, तो यह डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ APST के लिए खास करके APST जो SC ST के लिए कुछ ऐसा फैसिलिटीज़ कुछ स्कॉलरशिप को लेके भी क्या लेके आया हो, या आप लोग का तरफ से कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा लिंक है, कुछ बातचीत होता है सर? येस ऑफ कोर्स, एक्चुअली ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारा स्कॉलरशिप स्कीम्स है एजुकेशन के ऊपर, मोर देन 50 स्कीम्स है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस है जो लोग को ये ऑलरेडी दे आर ऑथोराइज टू गिव दिस सपोर्ट दिस स्टूडेंट्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स। यस, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप है, अप टू 100% तक स्कॉलरशिप का स्कोप्स है यहाँ पे, जो यहाँ पे 2-4 यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं।